Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our economic entomology paper. In this video lecture, I'm going to explain you about the insects as drugs and dyes. So let us proceed. From ancient times, number of insects and insect-derived products are used as a medicine or medicinal agents. Either they work directly or indirectly. या तो वो directly use किए जाते हैं insects या फिर उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स जो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम लॉट ऑफ एंशियंट टाइम. बहुत पुराने ज़माने से ऐसा होता आ रहा है एंड दे आर हैविंग अ पोटेंशियल सोर्स एज अ मेडिसिन. या तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं या फिर प्रोटेक्शन भी देते हैं. So in precautionary way you can also use insects as a drug or insect as a medicine and या फिर वो directly भी क्योर कर सकते हैं. मेजर डिजीज़ेस जो हैं उनमें वो प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया. HIV का तो सभी को पता है कि अभी तक कोई पर्टिकुलर जो वैक्सीनेशन नहीं है या कोई उसका क्योर नहीं है, बट स्टिल उसके जो कुछ सिम्टम्स हैं वो माइल्ड किए जा सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन इंसेक्ट products or insect can help in the curation or not just curation, in protection from HIV and bacterial infections जो होते हैं, bacterial diseases जो होते हैं, और कैंसर वगैरह में भी ये हेल्प करते हैं. Now let us proceed for the first insect which is used as a medicine. So that insect is Lita vesicatoria. Lita vesicatoria is a beetle, is a kind which is commonly called as Spanish beetle. So it is a green emerald colored जो shiny green color का beetle होता है. You can just see here in this photo. It's a shiny green colored beetle जिसको bristle beetle भी बोला जाता है. And this is having chemical जिसका नाम है terpenoid canthridine. So basically canthridine is a chemical which is extracted or which is taken from the beetle. So इसको ड्राई करके इसके जो ड्राइड एनिमल होता है उसमें से ये जो कैंथ्रेडाइन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड एक एडल्ट में से आपको 0.2 to 0.7 मिलीग्राम तक का कैंथ्रेडाइन मिल जाता है. कैंथ्रेडाइन अगर एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाए तो इट वर्क्स एज अ मेडिसिन, बट व्हेन इट इज़ टेकन इन अ लार्ज अमाउंट इट एक्ट्स एज अ टॉक्सिकेंट एजेंट. सो कैंथ्रेडाइन को यूज़ किया जाता है और इट इज़ यूज्ड एज अ एफ्रोडिसिक सोर्स और एफ्रोडिसिक की तरह इसको यूज़ किया जाता है. एफ्रोडिसिक इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, नो डाउट. So it is a kind of thing that which is used to enhance the sexual capability of any animal or any person. So that is the thing it is used for, and as I'm saying that is having a bit toxicant effect, so it can be just used to cure cancerous cells also. So जो कैंसरस सेल है उनको किल करने में भी ये हेल्प कर सकता है, हेल्प करता है. So this is how the Spanish beetle is a source of canthridine and it is used for curing sexual sexual disabilities and cancerous cases, or cancerous cells growth can be also reduced by this or can be controlled by this. Now next thing is apitherapy. I use this word apitherapy just because I just liked it, and it is a kind of new term. So api, in sense we know that the api word is related to the bees, honey bees, and the therapy is nothing but the curation we can say of certain disease जो है उसको बोल सकते हैं हम, या फिर किसी डिजीज़ का जो treatment होता है, that treatment is called as therapy. So apitherapy is a word which is used for the products which are used as a medicine for which are gained from the honey bees. So जो honey bee products होते हैं जो as a medicine जिनका value है, medicinal use है, so ऐसे products को apitherapy word में use किया जाता है या apitherapy के through उनको refer किया जाता है. So amongst this it comes that
द थिंग इज़ नो डाउट हनी। हनी हम सबको पता है, हनी के बहुत सारे जो है मेडिसिनल यूजेस है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट. एंड अनदर थिंग इज़ बी वेनम, most common and most popular thing. Other than that, pollen, pollens are also there. bee bread होता है, proposil होता है, प्रोपोलिस होता है, प्रोपोलिस होता है, और रॉयल जेली भी होता है, विच इज़ यूज एज अ मेडिसिनल थिंग और मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट्स वी कैन से. सो जो हनी के तो सारे ही पता है कि कोल्ड कफ में हेल्प करता है, कोल्ड कफ को माइल्ड करने के लिए हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो एनहांसेस द that immunity of person, and it helps in curing number of cold related diseases, and weight gaining में help करता है, weight loss के लिए help करता है. number of medicinal uses है हनी के. other than that बहुत सारे लोगों को venom के uses पता नहीं होते हैं, bee venom के. most of the time bee venom is just taken as a thing or toxicant solution which is released from the bees we can say. but बी जो वेनम होता है, बी वेनम में एक मेजर पेप्टाइड मटेरियल होता है जिसका नाम है मेलेटिन. मेलेटिन इज़ अ प्रोडक्ट विच जस्ट has a capability to treat inflammation in the patients of rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis पता है that this is a related disease to the bones related disease है, जिसमें इन्फ्लामेशन जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए बी वेनम का यूज़ किया जाता है. एंड बी वेनम इज़ ऑल्सो हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, जो यहाँ पे देख सकते हो. फॉस्फोलिपेज आर देयर, A2, PLA2 इज़ देयर, जो एंटी फंगल इन फंक्शन होता है, जो एंटी वायरल भी होता है और जो एंटी बैक्टीरियल भी होता है. तो ये ऐसे 3 प्रोडक्ट हैं. एंड अपामाइन इज़ देयर, जो एंटी वायरल भी होता है. एंड ये सारे तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स जो इसमें मौजूद हैं, जो इसमें प्रेजेंट है बी वेनम में. सो देयर इज़ फॉस्फोलाइपेज टू PLA2 एंड एपामाइन इज़ देयर, और मेलेटिन इज़ देयर. मेलेटिन का मैंने अभी बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्योर करने में वो हेल्प करता है. सो दीज प्रोडक्ट्स और दीज वेनम इज़ हैविंग एंटी फंगल इफेक्ट, एंटी वायरल इफेक्ट एंड एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट. दैट्स वाई एंटी वायरल इफेक्ट होने की वजह से HIV में जो है बहुत सारे HIV पेशेंट्स के लिए बी वेनम के थ्रू क्योर सर्च किया जा रहा है, सो दैट कि बी वेनम क्योर करे. बट इट इज़ नॉट प्रूवन येट कि वो एक कंप्लीट क्योर नहीं बना है. बट it just gives a relaxation to the HIV positive patients from the number of other symptoms, like उनमें बहुत सारे जो बोन प्रॉब्लम्स होते हैं या दूसरे जो वेट लॉस का प्रॉब्लम होता है उसमें वो हेल्प करता है. Now let us go for the next thing, that is army ants are there. So army ants are also called as carpenter ants. carpenter ants के जो जॉज होते हैं उनको यूज़ करके, उनके सूटर्स को यूज़ करके एक नेचुरल जो स्टिचिंग एजेंट, उनको एज एन स्टिचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है. सो कहीं भी कोई वुंड हो जाए या कुछ गहरा ज़ख्म हो जाए या गहरा ओंड हो जाए, कोई सीरियस इंजरी हो जाए, डीप कट हो जाए, तो वहाँ पे उन एंट्स के थ्रू बाइट करवाया जाता है टू दैट प्लेस, एंड दैट देयर bodies break off from that particular thing. So when they bite, their bite is such strong कि वो उनका जो सूटर्स है वो अच्छे से या हम बोल सकते हैं कि वो डीपली वहाँ पे टाइट होके रह जाते हैं. एंड फॉर दैट इट एक्ट्स एज अ complete natural stitching agent, we can say. So this is how the carpenter acts as a natural stitching agents. Now let us go for the next thing, that is maggots as medicine. Maggots, आपको पता है that maggots are nothing but the larval stages of dipteran insects. So basically जो blowfly होती है, blowfly की जो maggots होते हैं they are used as a wound
cleaning agents, or they just act as a medicinal, not directly medicine, but they act as a cleaner for chronic ulcers या chronic osteomyelitis जो होता है वहाँ पे. सो जहाँ पे जो particular portion है where is chafing due to that particular whenever that particular region is filled with pus or any that we can say blood etc or dead tissues, so that is you just cleaned by these maggots. तो वहाँ पे maggots को यूज़ किया जाता है for the cleaning purpose and for just cleaning the dead material or dead cells. तो ये जो maggots होते हैं blowfly की जो एक species होती है वो क्या करती है कि dead tissues पे फीड करती हैं. एंड दीज मैगट्स एज दे आर वोराशियस फीडर, वो फटाफट से वहाँ के डेड सेल्स को ईट अप करके वहाँ क्लीन कर देते हैं. सो दिस इज़ हाउ मैगट्स आर यूज एज अ मेडिसिन. सो हियर द मेडिसिनल इंसेक्ट्स ends up. Now let us go for the insects as a dye, how insects are used as a dye. So the first one is cochineal is there. Cochineal is nothing but it is kind of a beetle. It is a beetle which is having a scales, colored scales on its body. So its scales are used for preparation of dye which is named as carmine. तो कैरमाइन डाई इससे प्रिपेयर किया जाता है. सो कैरमाइन डाई प्रिपेयर कैसे किया जाता है? कैरमाइन डाई 17 to 20% ऑफ ड्राइड इंसेक्ट का जो वेट का जो मटेरियल होता है, तो 17 to 24% ऑफ दैट मटेरियल इज़ एक्सट्रैक्टेड. यानी एक ड्राई इंसेक्ट से आपको उसके बॉडी वेट के 17 से 24% तक के वेट तक का जो कैरमाइन है वो मिल जाता है उस पर्टिकुलर इंसेक्ट बॉडी से. एंड दैट इज़ ऑल्सो यू कैन जस्ट टेक दैट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट और कैरमैनिक एसिड फ्रॉम द एग्स ऑल्सो. सो कैरमैनिक एसिड या तो आपको अडल्ट से मिल जाएगा उसके बॉडी वेट के 17 to 24% तक का, या फिर आपको एग से भी मिलता है कैरमैनिक एसिड ऑफ व्हाट, ऑफ कोनियल बीटल ओनली. कोनियल बीटल के ही जो एग्स हैं और उसी के एडल्ट से मिलेगा ये. एंड दैट इज़ मिक्स विद एल्यूमिनियम, या फिर उसको एल्यूमिनियम या कैल्शियम सॉल्ट में मिक्स किया जाता है. एंड देन द डाई इज़ प्रिपेयर्ड. यू कैन जस्ट सी हियर दिस डाई इज़ प्रिपेयर्ड. And this dye is also or it is called as cochineal. Cochineal इसको वही उसी इंसेक्ट के या उसी बीटल के नेम से इसको नेम दिया गया है cochineal. This dye is named as a cochineal. या फिर आप उसको कैरामाइनिक या कैरामाइन भी बोल सकते हो. कैरामाइन डाई या कैरामाइनिक एसिड से ये बनाया गया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कैरामाइन डाई. और या फिर कोकिनियल बीटल की बॉडी से बना है इसलिए इसको कोकिनियल भी बोला जाता है. एंड दिस कैरामाइन इज़ बेसिकली यूज इन डाइंग और एज अ कलरेंट और कलरिंग एजेंट इन फूड्स और लिपस्टिक्स. तो फूड्स और लिपस्टिक्स में ये एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द स्केल इंसेक्ट, लैकर इंसेक्ट जिसको बोला जाता है. सो लैकर बीटल इज़ देयर. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ऑरेंज बीटल, ऑरेंज स्केल्ड बीटल भी बोला जाता है इसको. दैट इज़ लैविया एक्सिन, या फिर इसका एक और नाम है मार्गैरोट. ओके, इट बिलोंग्स टू द फैमिली रोडिडी, मार्गरोडिडी फैमिली से बिलोंग करता है. एंड इट्स नेम इज़ Lavia axin. So Lavia axin is the name of this beetle. So this is having a scale on its body. जैसे जो कोकिनियल बीटल था उससे डाई प्रिपेयर किया जाता है, वैसे ही नेचुरल डाई लैकर बीटल से भी प्रिपेयर किया जाता है. एंड दिस डाई इज़ यूज्ड फॉर डाइंग द क्लोथ्स को डाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. सो दिस डाई इज़ यूज्ड टू डाई द क्लोथ्स जो इस पर्टिकुलर बीटल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ लैसिफेरा लैका विच इज़ कॉमन इंडियन लैक इंसेक्ट, जो एज जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एंड दे लिव ऑन अ ट्विग एंड दे फॉर्म
or they release lac over there. Lac is a kind of product. It is a dye which is used to prepare बैंगल्स एंड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं फीमेल ऑर्नामेंट्स, ये प्रिपेयर करने के लिए या समटाइम्स वो दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड डाइज जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल डाई ऑल्सो, so it is used for dyeing purpose also. So this is how insects as a drugs and medicines ends up. Hopefully you have understood the lecture. So thanks for watching. Have a nice day.